کیا آپ جانتے ہیں کہ سال 2050 میں انڈیا ایک ایسا کنٹری بننے جا رہا ہے جس میں ایٹ دا سیم ٹائم ہندوز بھی دنیا کے باقی تمام کنٹریز سے زیادہ ہونے والے ہیں اور مسلمز بھی۔ آج انڈیا دنیا میں انڈونیشیا کے بعد سب سے بڑی مسلم آبادی رکھنے والا ملک ہے، لیکن سال 2050 میں انڈیا انڈونیشیا کو پیچھے چھوڑتے ہوئے نمبر 1 مسلم پاپولیٹڈ کنٹری بننے جا رہا ہے۔ یوں تو بھارت ایک ہندو اکثریتی ملک ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ یہاں ہر 7واں بھارتی ایک مسلم ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ بھارت میں اسلام کی موجودہ صورتحال کیا ہے، بھارت کی کون سی ٹاپ 10 سٹیٹس میں مسلمز کی سب سے بڑی تعداد ہے، اور سال 2050 میں انڈین مسلمز کی یہ آبادی کہاں تک پہنچے گی۔ راز فائلز کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ نمبر 10 آندھرا پردیش۔ نمبر 10 پر ہے آندھرا پردیش۔ یہاں اسلام صوفی بزرگوں، تاجروں اور پرانے مسلم حکمرانوں کے ذریعے آیا۔ آندھرا پردیش کے پاس بھارت کی دوسری سب سے بڑی ساحلی پٹی ہے جو تقریباً 974 کلومیٹرز بنتی ہے۔ دریائے کرشنا اور دریائے گوداوری یہاں سے گزرتے ہیں، جس کی وجہ سے یہاں کی سرزمین بہت زرخیز ہے۔ آندھرا پردیش کے کئی شہروں میں آج بھی پرانے دور کی مساجد، درگاہیں اور مدرسے موجود ہیں۔ یہاں زیادہ تر مسلمز تیلگو زبان بولتے ہیں، لیکن یہاں کے کچھ علاقوں میں اردو زبان بھی بولی جاتی ہے۔ آج آندھرا پردیش کے مسلمز ہائیلی ایجوکیٹڈ ہیں جو گورنمنٹ جابز، کمپیوٹر آپریٹر یا پھر فورن کنٹریز میں بھی جابز کرتے ہیں۔ آندھرا پردیش میں مسلمز ایک اہم برادری ہیں۔ آندھرا پردیش کے شہروں میں مسلمز کے لیے تعلیم اور روزگار کے حالات بہتر ہیں، لیکن یہاں کے دیہات میں فیسلٹیز نہ ہونے یا بہت کم ہونے کی وجہ سے کچھ مسائل ضرور ہیں۔ آج کی ڈیٹ میں بھارت کے آندھرا پردیش میں مسلمز کی کل تعداد تقریباً 54,80,000 ہے، جو سال 2050 میں بڑھ کر تقریباً 62,31,000 ہو جائے گی۔ اس لحاظ سے سال 2050 میں آندھرا پردیش کی کل پاپولیشن کا تقریباً 10% حصہ مسلمز کا ہوگا۔ نمبر 9 گجرات۔ گجرات بھارت کی ایک اہم مغربی ریاست ہے۔ اس کی سرحدیں راجستھان، مہاراشٹر، مدھیہ پردیش اور بحیرہ عرب سے ملتی ہیں۔ احمد آباد گجرات کا سب سے مشہور اور سب سے بڑا شہر ہے۔ بھارت کے گجرات میں زیادہ تر مسلمز احمد آباد، سورت، وڈودرا، کچھ اور جوناگڑھ میں رہتے ہیں۔ گجرات میں اسلام سب سے پہلے تاجروں کے ذریعے آیا، کیونکہ یہ ریاست صدیوں سے سمندری تجارت کا مرکز رہی ہے۔ بعد میں صوفی بزرگوں اور مغلیہ سلطنت نے اسلام کو گجرات میں مزید پھیلایا۔ یہاں کے میکسیمم مسلمز گجراتی زبان بولتے ہیں، لیکن گجرات کے شہروں میں اور یہاں کے تعلیم یافتہ طبقے میں اردو زبان بھی استعمال ہوتی ہے۔ یہاں بڑے اہتمام سے رمضان، عید الفطر اور عید الاضحیٰ منائی جاتی ہیں۔ آج کی ڈیٹ میں گجرات میں مسلمز کی کل تعداد تقریباً 61,30,000 ہے، جو سال 2050 میں اس سے بھی زیادہ بڑھ کر تقریباً 68,64,000 ہو جائے گی۔ اس لحاظ سے سال 2050 میں گجرات کی کل پاپولیشن کا تقریباً 11% حصہ مسلمز کا ہوگا۔ نمبر 8 راجستھان۔ نمبر 8 پر بھارت کی ریاست راجستھان ہے، جو بھارت کے رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑی ریاست ہے۔ یہ اتنی طویل ہے کہ اس کی سرحدیں پاکستان اور بھارت کی ریاستوں گجرات، مدھیہ پردیش، اتر پردیش، پنجاب اور ہریانہ سے ملتی ہیں۔ اس کا سب سے مشہور شہر جے پور ہے۔ یہ ریاست اپنے قلعوں، محلات، صحرائی تھر اور رنگا رنگ ثقافت کے لیے مشہور ہے۔ راجستھان میں میکسیمم مسلمز جے پور، اجمیر، جودھ پور اور بھرت پور میں رہتے ہیں۔ اجمیر شریف میں خواجہ معین الدین چشتی کی درگاہ دنیا بھر میں مشہور ہے اور یہاں ہر سال لاکھوں لوگ آتے ہیں۔ یہاں کئی پرانی مساجد اور درگاہیں راجستھان کی اسلامی تاریخ کو ظاہر کرتی ہیں۔ یہاں کے میکسیمم مسلم راجستھانی اور ہندی زبان بولتے ہیں، تاہم کچھ طبقوں میں اردو زبان بھی بولی جاتی ہے۔ یہاں شیعہ مسلمز بھی آباد ہیں، اس لیے یہاں محرم کے جلوس بھی نکلتے ہیں، اور یہاں اجمیر شریف کا عرس بھی بہت مشہور ہے۔ راجستھان کے شہروں میں آباد مسلمز تعلیم اور کاروبار میں نمایاں نظر آتے ہیں۔ آج کی تاریخ میں راجستھان میں مسلمز کی کل تعداد تقریباً 68,40,000 ہے، جو سال 2050 میں بڑھ کر تقریباً 78,56,000 ہو جائے گی، اور اس لحاظ سے سال 2050 میں راجستھان کی کل پاپولیشن کا تقریباً 10% حصہ مسلمز کا ہوگا۔ نمبر 7 کرناٹکا۔ کرناٹکا بھارت کے جنوبی حصے میں واقع ایک بڑی ریاست ہے۔ اس کی سرحدیں مہاراشٹر، آندھرا پردیش، تامل ناڈو، کیرالہ اور گوا سے ملتی ہیں۔ یہاں کا سب سے مشہور شہر بنگلورو ہے، جو کرناٹکا کا دارالحکومت بھی ہے، اور یہ شہر وہاں کا IT ہب بھی مانا جاتا ہے۔
कर्नाटका अपनी IT इंडस्ट्री, कदीम मंदिरों, कल्लों और तारीखी विरसे के लिए मशहूर है। कर्नाटका में मैक्सिमम मुस्लिम्स बेंगलुरु, मैसूर, गुलबर्गा, बीजापुर, मंगलोर और बेलगावी में रहते हैं। यहाँ इस्लाम का असर टीपू सुल्तान और इस्लामी सल्तनत के दौर में ज्यादा हुआ। बीजापुर की तारीखी मसाजिद और मकबरे आज भी इस्लामी विरसे की याद दिलाते हैं। यहाँ मैक्सिमम मुस्लिम्स अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कंट्रा जुबान बोलते हैं, जबकि कुछ इलाकों में तामिल और उर्दू भी बोली जाती है, खास तौर पर सरहदी इजला में। आज की तारीख में भारतीय रियासत कर्नाटका में मुस्लिम्स की कुल तादाद तकरीबन 80,40,000 है, जो साल 2050 में बढ़कर तकरीबन 96,92,000 हो जाएगी। और इस लिहाज से साल 2050 में कर्नाटका की कुल पॉपुलेशन का तकरीबन 15% हिस्सा मुस्लिम्स का होगा। नंबर 6, केरला। केरला भारत के जनूबी साहिली हिस्से में वाक़या एक मशहूर रियासत है। इसकी सरहदें केरला के मगरब में बहरा अरब, मशरक में तमिलनाडु और शिमाल में कर्नाटका से मिलती हैं। ये रियासत अपने कुदरती हुस्न, बैक वाटर्स यानी पानी की झीलों के रास्ते, नारियल के दरख्तों और साहिलों की खूबसूरती के लिए मशहूर है। यहाँ की तकरीबन 1/4 पॉपुलेशन मुस्लिम्स की है। यहाँ मैक्सिमम मुस्लिम्स मलापुरम, कासरगोड और त्रिसूर में रहते हैं। केरला में इस्लाम सबसे पहले 7वीं सदी ईस्वी में आया, जब अरबी ताजर यहाँ तजारत के लिए आते थे। ये भारत के उन हिस्सों में से एक है जहाँ इस्लाम भारत में सबसे पहले पहुंचा। यहाँ के मुस्लिम्स मैपिला मुस्लिम्स कहलाते हैं। यहाँ मैक्सिमम मुस्लिम्स अपनी मादरी जुबान मलयालम बोलते हैं। यहाँ के मुस्लिम्स ज्यादातर तजारत, माहीगीरी और ज़राअत से मुंसलिक हैं और यहाँ के बहुत सारे मुस्लिम्स गल्फ कंट्रीज में भी रोजगार हासिल किए हुए हैं, जो सऊदी अरब, दुबई, कतर और कुवैत वगैरह में जॉब्स करते हैं और भारत में ज़र मुबादला भेजते हैं। केरला के मुस्लिम्स भारत की दूसरी रियासतों के मुकाबले में तालीम और सेहत के शोबों में बहुत आगे हैं। यहाँ के मुस्लिम्स डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और IT एक्सपर्ट्स जैसी एक्सपर्टीज भी हासिल किए हुए हैं। वैसे भी गल्फ कंट्रीज में रोजगार की वजह से केरला के मुस्लिम्स की मुआशी हालत बहुत बेहतर है। आज की तारीख में भारतीय रियासत केरला में मुस्लिम्स की कुल तादाद तकरीबन 91,70,000 है, जो साल 2050 में बढ़कर तकरीबन 98,40,000 हो जाएगी। इस लिहाज से साल 2050 में केरला की कुल पॉपुलेशन का तकरीबन 28% हिस्सा मुस्लिम्स का होगा। नंबर 5, असम। असम भारत के शिमाल मशरकी हिस्से की सबसे बड़ी रियासत है, जिसकी सरहदें भूटान और बांग्लादेश के अलावा भारत की रियासतों अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय और मगरबी बंगाल से मिलती हैं। इस रियासत का सबसे बड़ा और मशहूर शहर गुवाहाटी है। असम अपनी चाय, ब्रह्मपुत्रा दरिया, काजीरंगा नेशनल पार्क और अपने सकाफती मेलों की वजह से जाना जाता है। भारत की ये रियासत भारत में मुस्लिम्स की सबसे ज्यादा शरह रखने वाली बड़ी रियासतों में शामिल है। अगर तारीखी इतबार से देखा जाए तो कुछ मुस्लिम्स यहाँ बंगाल से हिजरत करके आए और असम में आकर आबाद हुए। असम के मुस्लिम्स को 2 बड़े ग्रोहों में तकसीम किया जाता है। एक है असामी मुस्लिम्स जो सदियों से यहाँ रह रहे हैं और दूसरे बंगाल के मुस्लिम्स हैं जो यहाँ बंगाल से हिजरत करके आए। यहाँ मैक्सिमम मुस्लिम्स असामी और बंगाली जुबान बोलते हैं। असम के शहरों में उर्दू और हिंदी जुबान भी इस्तेमाल होती है। यहाँ के मैक्सिमम मुस्लिम्स ज़राअत, खेतों का काम, मछली के कारोबार और इस तरह के छोटे पेशों से मुंसलिक हैं। यहाँ कुछ जगहों पर मुस्लिम्स की मुआशी हालत पसमानदा है। असम के देहात के मुस्लिम्स आज भी काफी पसमानदा और गरीब हैं। आज मुस्लिम्स के लिए यहाँ के एजुकेशन सिस्टम में बेहतरी आ रही है, लेकिन अभी भी बहुत कमियां बाकी हैं। असम के मुस्लिम्स भारत की एक बड़ी अकलियत हैं। आज की तारीख में भारत की रियासत असम में मुस्लिम्स की कुल तादाद तकरीबन 1,11,00,000 है, जो साल 2050 में बढ़कर तकरीबन 1,48,00,000 हो जाएगी। इस लिहाज से साल 2050 में असम की कुल पॉपुलेशन का तकरीबन 36% हिस्सा मुस्लिम्स का होगा। नंबर 4, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र भारत के मगरबी हिस्से में एक बड़ी और अहम रियासत है। इसकी सरहदें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, तमिलनाडु और गुजरात से मिलती हैं, जबकि इसके मगरब की तरफ अरब सागर है। इसका मशहूर शहर मुंबई है, जो इस स्टेट का दारुल हुकूमत भी है और ये भारत का सबसे बड़ा शहर है। महाराष्ट्र बॉलीवुड इंडस्ट्री की वजह से भी मशहूर है। यहाँ मैक्सिमम मुस्लिम्स मुंबई, पुणे, औरंगाबाद, नागपुर, मालेगांव, नासिक और कोल्हापुर में रहते हैं। यहाँ भी इस्लाम दिल्ली सल्तनत और मुगलिया सल्तनत के जरिए आया। औरंगाबाद और इसके इतराफ के इलाके तारीखी इस्लामी विरसे के लिए मशहूर हैं।
यहाँ के मैक्सिमम मुस्लिम्स हिंदी, उर्दू और मराठी जुबान बोलते हैं। यहाँ के मालीगांव जैसे शहरों में कपड़े की सनतों के लगने में मुस्लिम्स का बड़ा किरदार है। आज की तारीख में भारतीय रियासत महाराष्ट्र में मुस्लिम्स की कुल तादाद तकरीबन 1,38,00,000 है, जो साल 2050 में बढ़कर तकरीबन 1,65,00,000 हो जाएगी। और इस लिहाज से साल 2050 में महाराष्ट्र की कुल पॉपुलेशन का तकरीबन 12% हिस्सा मुस्लिम्स का होगा। नंबर 3, बिहार। बिहार भारत के मशरकी हिस्से में वाक़या एक बड़ी स्टेट है। इसकी सरहदें उत्तर प्रदेश, झारखंड, मगरबी बंगाल और नेपाल से मिलती हैं और इस स्टेट का मशहूर शहर पटना है, जो बिहार का दारुल हुकूमत भी है। बिहार सिर्फ एक भारतीय रियासत नहीं है, बल्कि हजारों साल पुरानी तहजीब की अलामत है। यहाँ की नालंदा यूनिवर्सिटी को दुनिया की सबसे पुरानी तालीमी दरसगाहों में शुमार किया जाता है। अगर आप किशनगंज, औरिया, पूर्णिया जाएं तो आपको वहाँ के तकरीबन हर एक गाँव में मुस्लिम्स की बस्तियाँ मिलेंगी। बिहार के मुस्लिम्स आमतौर पर सादा जिंदगी, इस्लाम के साथ मजहबी वाबस्तगी और मेहनत कशी के लिए मशहूर हैं। पटना के करीब मुनीर शरीफ आज भी एक मशहूर रूहानी मरकज है, जहां हर साल उर्स पर हजारों लोग आते हैं। दरभंगा की खानकाहें और भागलपुर की दरगाहें इस बात का सबूत हैं कि यहाँ के मुस्लिम सूफी इज़्म को बहुत पसंद करते हैं। बिहार के मुस्लिम्स की एक बड़ी तादाद रोजगार की तलाश में गल्फ कंट्रीज और भारत की दूसरी स्टेट्स में जाते हैं, जबकि यहाँ के मैक्सिमम मुस्लिम्स किसान हैं जो खेती बाड़ी करके अपना गुजारा करते हैं। आज की तारीख में भारत की रियासत बिहार में मुस्लिम्स की कुल तादाद तकरीबन 1,96,00,000 है, जो साल 2050 में बढ़कर तकरीबन 2,23,00,000 हो जाएगी। इस लिहाज से साल 2050 में बिहार की कुल पॉपुलेशन का तकरीबन 18% हिस्सा मुस्लिम्स का होगा। नंबर 2, वेस्ट बंगाल। नंबर 2 पर वेस्ट बंगाल है, जो भारत की अहम तरीन रियासत है। कोलकाता का शहर इस रियासत की पहचान है, जो कभी बरतानवी दौर में भारत का दारुल हुकूमत भी हुआ करता था। गंगा नदी और सुंदरबन के जंगलात बंगाल को खास बनाते हैं। मैक्सिमम मुस्लिम्स बंगाली बोलते हैं। बड़े शहरों जैसे कलकत्ता और मुर्शिदाबाद में उर्दू जुबान बोलने वाले मुस्लिम्स भी बड़ी तादाद में हैं। यहाँ के कुछ इजला में मुस्लिम्स रेशमी साड़ियाँ बुनने, मिट्टी के बर्तन बनाने और दस्तकारी में मशहूर हैं। रमजान और ईद के मौका पर पूरे बंगाल की गलियां रोशनियों से जगमगा उठती हैं। यहाँ के मुस्लिम्स भारत की एक बड़ी अकलियत हैं, जो बंगाल का तकरीबन 1/4 बनते हैं। आज की तारीख में भारतीय रियासत वेस्ट बंगाल में मुस्लिम्स की कुल तादाद तकरीबन 2,76,00,000 है, जो साल 2050 में बढ़कर तकरीबन 3,10,00,000 हो जाएगी। इस लिहाज से साल 2050 में वेस्ट बंगाल की कुल पॉपुलेशन का तकरीबन 28% हिस्सा मुस्लिम्स का होगा। नंबर 1, उत्तर प्रदेश। यूपी भारत की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाली स्टेट है। ये स्टेट सदियों से भारतीय सियासत, तहजीब और तारीख का मरकज रही है। दरियाए गंगा और जमुना की वादी इसको जरहेज और तारीखी तौर पर अहम बनाती हैं। इसके मशहूर शहरों में लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, जिसे बनारस भी कहा जाता है, आगरा, इलाहाबाद, मेरठ, अलीगढ़ और बरेली शामिल हैं। इस एक रियासत में इतने ज्यादा मशहूर शहर इस बात का सबूत है कि ये रियासत भारत की सबसे ज्यादा आबादी वाली रियासत है और भारत की यही वो स्टेट है जिसमें मुस्लिम की तादाद भी सबसे ज्यादा है। अगर तारीखी एतबार से देखा जाए तो इस्लाम यहाँ गजनवी सल्तनत के दौर से आया और फिर मुगलिया सल्तनत के दौर में मजीद फैला। आगरा का ताजमहल, फतेहपुर सीकरी, लखनऊ के इमाम बाड़े, बरेली और रामपुर की खानकाहें, ये सब यूपी के इस्लामी विरसे की निशानियां हैं। यूपी हमेशा से उर्दू जुबान और अदब का गहवारा रहा है। मीर गालिब, अल्लामा मोहम्मद इकबाल, जोश, फराक और दूसरे बड़े शायर इसी धरती के फर्जंद हैं। उर्दू जुबान यूपी के मुस्लिम्स की पहचान है और लखनऊ की तहजीब भी। सलाम, आदाब, खानों का जायका और मिलाद या महफिलों की रौनक सब एक अलग सकाफती शान रखते हैं। पुराने वक्तों में यहाँ के मुस्लिम्स ज्यादातर दस्तकारी और हुनर से जुड़े हुए थे, जो मुरादाबाद में पीतल का काम, सुहानपुर में लकड़ी का और फर्नीचर का काम और फिरोजाबाद में शीशे और चूड़ियों का काम करते हैं। जबकि आज की तारीख में यहाँ के मुस्लिम्स तालीम याफ्ता हैं, जो डॉक्टरी, तदरीस, गवर्नमेंट जॉब्स और IT इंडस्ट्री में भी काम करते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और दारुल उलूम देवबंद मुस्लिम्स की तालीमी और दीनी शनाख्त के हवाले से अहम तरीन अदारों में शुमार होते हैं। उत्तर प्रदेश के मुस्लिम्स इस एतबार से मुनफरिद हैं कि इनके पास उर्दू जुबान, तारीखी विरसा, सूफी रवायत और दस्तकारी का हुनर सब एक साथ मौजूद है। यही वजह है कि यूपी के मुस्लिम्स भारत की मुस्लिम शनाख्त के एक
एक बड़े नुमाइंदा के तौर पर माने जाते हैं। आज की तारीख में भारत की रियासत उत्तर प्रदेश में मुस्लिम्स की कुल तादाद तकरीबन 4 करोड़ 38 लाख है, जो साल 2050 में बढ़कर तकरीबन 5 करोड़ 25 लाख हो जाएगी। इस लिहाज से साल 2050 में उत्तर प्रदेश की कुल पॉपुलेशन का तकरीबन 22% हिस्सा मुस्लिम्स का होगा। तो ये थी वो टॉप 10 मुस्लिम पॉपुलेटेड स्टेट्स इन इंडिया, जहां मुस्लिम्स की तादाद साल 2050 में सबसे ज्यादा होगी। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी और इंफॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक करें और हमारे YouTube चैनल राज फाइल्स को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और नई इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ।